Hello, good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon, sir. We are Good fine, afternoon, and sir. what We are about you? fine, sir. How are you? I'm also fine, thank you. Let us start the session for today of your English subject. But in our previous class of English subject, we just completed the which section? Which section we were completed? Sir, We were listening completed the listening section as well as the speaking and also. speaking. Okay. So only writing junction as well as the comprehension junction is remaining. So today we are going to discuss. Yes, sir. Today we are going to complete the writing junction. Writing junction को आज हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, क्या कौन सी राइटिंग स्किल्स हमें सीखने को मिलती है आज के इस सेक्शन में. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी कंप्लीटिंग द कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन. और इस तरीके से चैप्टर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके इंग्लिश के बुक का. ओके. Yes, sir. So let's talk about the today's session. In today's session we are going to talk about that ki how to write about a protagonist. कोई particular character, how to write about a character, about any of the character in a particular story or any particular movie or poem. It may be whatever is there. Let's say if you are having any of the story, and in the story it is obvious that ki there may be many of the characters, और उस उन Yes, sir. कई सारे characters में कोई एक ऐसा होगा that will be the acting as a main character. That is the this protagonist. इसका मीन्स होता है नायक. आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. दिख रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब होता है नायक या नायिका. दैट मीन्स इसका आप एक तरीके से सेकेंड वर्ड आप लिख सकते हैं. द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज द मेन कैरेक्टर ऑफ एनी स्टोरी, मेन कैरेक्टर ऑफ एनी प्ले. कुछ भी हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, प्ले हो सकता है, एनी ऑफ द थिंग्स इज देयर. अगर उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर है दैट विल बी द प्रोटैगनिस्ट. ओके. सो Yes, today we are going to write about today we are going to learn that ki how to write about any of the character, whether it is a main character or any else character. Okay. So what is there in your book? Actually, first of all we would be going through this one. Thereafter I would be telling you all that ki how to write about any character. Desiree is the protagonist of the story. Whatever the chapter we have read in the chapter number 1, in that chapter Desiree is the main character of the chapter, main character of the story, isn't it? yes, sir. है वही तो मेन कैरेक्टर है आपकी इस स्टोरी का, आपके पहले चैप्टर का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, There sir. are Yes, sir. अब कोई भी मेन कैरेक्टर्स हैं. There are many ways in which the author reveals her personality to the readers. अब यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं. There are many ways, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं in which the author reveals her personality. जहाँ पे जो ऑथर है रिवील करता है, यानी एक तरीके से बताता है क्या अबाउट हर पर्सनालिटी, किसी पर्टिकुलर मेन जो कैरेक्टर है या जो नायक या नायिका है उसके व्यक्तित्व के बारे में रिवील करता है यानी बताता है. बहुत सारे तरीके हैं. कैसे हैं? पर्सनालिटी टू द रीडर. व्हेन वी वांट टू एनालाइज अ कैरेक्टर इन ए स्टोरी we should look for certain clues such as. अब किसी भी पर्टिकुलर स्टोरी में किसी भी कैरेक्टर के या किसी भी मेन कैरेक्टर को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो उसके लिए कुछ क्लूज दिए गए हैं. we should look for certain clues such as. ये जो कई सारे क्लूज दिए गए हैं उसको देखना चाहिए. अब आपके इसी चैप्टर की बात करें तो देयर आर मेनी कैरेक्टर. आपका डेजरी है, डेजरी की माँ है मैडम वॉलमुंडे, और उनके फादर भी है. थोड़ा सा है, बहुत कम रोल है बट है. और अच्छा मेन कैरेक्टर तो मान लीजिए डेजरी है. उसके बाद जो आपका कह सकते हैं कि उसके बाद कौन हो सकता है डेजरी के बाद? Sir, the baby. द बेबी. हाँ, द बेबी, बिकॉज द बेबी इज द मतलब मेन पॉइंट, या कह सकते हैं बेबी ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से स्टोरीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आता है. जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसमें बदलाव आता है और किसी के कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को भी मिलता है. जैसे कि अरमन की बात किया जाए, अरमन को शुरू में तो बहुत अच्छा जाना गया था लेकिन बाद में क्या हुआ सभी को पता है, स्टोरी जो पढ़े.
फिलहाल क्या देखना चाहिए, हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं। वी शुड लुक फॉर द सर्टेन क्लूज सच एज, क्या क्या देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो किसी भी चरित्र की जो डिस्क्रिप्शन किया गया, चरित्र का विवरण क्या है, जो चरित्र का विवरण क्या है। द कैरेक्टर्स थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन, जो कैरेक्टर का जो थॉट है, थॉट यानी विचार, आखिर कैरेक्टर जो आपका कैरेक्टर है, जो भी रोल निभा रहा है, उसके थॉट क्या है, उसके विचार क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, आखिर वो कैसा महसूस करती है, उसके मतलब एक तरीके से उसके भाव क्या है, और उसके एक्शन, और आखिर उसके कृत्य क्या है। किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए दीज आर द मेन थिंग्स जो कि हम एनालाइज करते हैं कि आखिर जो कैरेक्टर है उसके विचार कैसे हैं, उसके व्यक्तित्व कैसे हैं, और उसका जो कृत्य है, वो जो काम करते हैं वो कैसे हैं। अगर बेहतर है तो कैरेक्टर के प्रति हमारे 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 मन में पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और अगर कहीं पे जैसे अरमन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद अरमन के लिए हम पॉजिटिव फीलिंग नहीं ला सकते अपने लिए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए, द रिएक्शन ऑफ अदर्स टू द कैरेक्टर, द नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ अदर्स टू द कैरेक्टर्स एक्शन स्पीच। आखिर जो रिएक्शन है, रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई एक्ट होता है तो उसके बदले में रिएक्ट होता है। तो एक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हिंदी में बोलते हैं। तो जो रिएक्शन होता है, यानी जो स्टोरी जो हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें रिएक्ट करते हैं ना। स्टोरी हमने मान लीजिए ये पहला चैप्टर पढ़ा, एक स्टोरी पढ़ा, अब इसमें रिएक्ट करेंगे हम, अपने एक तरीके से अपना फीडबैक देंगे। जो जैसे डेजरी ने के जो एक्शन है, या अरमन का जो एक्शन रहा, या मैडम मालमुंडे के जो एक्शन रहा, उसमें हमारा रिएक्शन क्या है। तो क्या है, द रिएक्शन ऑफ अदर्स, जो अदर्स लोगों का या दूसरे लोगों का रिएक्शन क्या है, किस पे, टू द कैरेक्टर्स एक्शन स्पीच एटसेट्रा। जो कैरेक्टर के एक्शन, कैरेक्टर के द्वारा किए गए कृत्यों या उनके कामों या उनके द्वारा कहे हुए वक्तव्यों, यानी एक तरीके से जो भी शब्दों का चुनाव किया है उन लोगों ने, या जो कुछ भी उस स्टोरी में उसने बोला है, तो उनके कृत्यों या फिर उनके वक्तव्यों पे हमारा या जो भी पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन का आखिर रिएक्शन क्या है, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता है टू एनालाइज द कैरेक्टर इन द स्टोरी। किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए, यानी उसको जांचने के लिए, परखने के लिए। ओके, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. द राइटर्स डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, आखिर जो भी स्टोरी लिख रहा है उस राइटर का डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। शुरू में ही मान लीजिए स्टेटमेंट, आपकी कोई स्टोरी शुरू हुआ और वहां पे शुरू में ही राइटर ने बोल दिया, मान लीजिए डेजरी के लिए बोल दिया या किसी और के लिए बोल दिया, या कोई एक दूसरा स्टोरी है उसमें मान लीजिए कोई राइटर है और राइटर ने क्या लिखा है कि शी इज वेरी काइंड पर्सन, she help their she help her neighborhood, many things are there, she share clothes or whatever the needy she share her clothes and foods with the needy one। तो एक तरीके से जब पहले से ही स्टेटमेंट है, हम कोई स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये पहले से अगर स्टेटमेंट, स्टोरी शुरू हुआ और किसी पर्सन के बारे में राइटर ने ये सारे स्टेटमेंट लिखे हैं जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि डायरेक्टली बता दिए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए काफी अहम रोल निभाते हैं। तो क्या है फोर्थ पॉइंट, द राइटर्स डायरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है राइटर का, वो भी काफी अहम होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ एनी स्टोरी। ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. next point is the next point, actually the next, it is not a point, it is a question. Does the character, because there is a question mark actually, does the character play a major or a minor role in the story? Does the character play a major or minor role in the story? क्या जो कैरेक्टर है वो मेजर रोल या माइनर रोल स्टोरी में प्ले करता है? तो आप लोग को बताना है आखिर जो कैरेक्टर है वो माइनर या मेजर रोल, किस तरह का रोल स्टोरी में प्ले करता है, बताइए। मेजर या माइनर? मेजर मीन्स क्या होता Major है? role. Some major. बृहद। प्रमुख. मेजर मीन्स होता है बृहद और माइनर मीन्स छोटा, मतलब सूक्ष्म, इस तरीके से कह सकते हैं। तो क्या किसी भी स्टोरी में कोई कैरेक्टर है वो बहुत छोटे में भी प्ले करता है, बहुत सूक्ष्म रोल भी निभाता है, या बहुत ही ज्यादा बृहद स्तर पे ही निभाता है? Sir, दोनों. दोनों हो सकता है। आप जो पहला चैप्टर पढ़े आपने, पहला चैप्टर हम लोगों ने Yes. पढ़ा, उसमें क्या है,
जो डेजरी है वो शुरू से लेकर लास्ट तक है, यानी एक तरीके से डेजरी इज प्लेइंग द मेजर रोल इन दिस स्टोरी major role. in the chapter first. But if we talk about Dejeri's parents, if we talk about the पेरेंट्स ऑफ डेजरी, या फिर जो वहां पे उनके यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट थे, जो उनके जो डेजरी के घर पे जो काम करने वाले लोग थे, उनका भी रोल काफी कम था, लेकिन था तो, है कि नहीं? Yes, sir. तो कोई भी कैरेक्टर या तो मेजर रोल भी प्ले कर सकता है या माइनर रोल भी प्ले कर सकता है. द नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, डज द कैरेक्टर चेंज एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस और डज ही और शी रिमेन द सेम? यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डज द कैरेक्टर चेंज, जो क्या जो कैरेक्टर है वो चेंज होता है एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, क्या कैरेक्टर चेंज होता रहता है, या ही शी रिमेन द सेम, या वो जो है जो कैरेक्टर है वो सेम रह जाता है? कैरेक्टर यानी जो भी आपका नायक या नायिका है उसके कैरेक्टर की बात किया जा रहा है. तो जो कैरेक्टर है वो चेंज होता है स्टोरी में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, क्या वो चेंज भी हो सकता है या चेंज होता है, या फिर वही सेम रह जाता है किसी स्टोरी में? तो चेंज भी होता है. जैसे तो जैसे सर इन द डेजरी स्टोरी डेजरी हस्बैंड कैरेक्टर चेंज एज द स्टोरी. I could not get your answer actually. I could not get your point. Any other students? बेटा अभिषेक यादव told that कि it can be changed. अब कैरेक्टर जो चरित्र है वो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में किसी भी कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए जो उसका रोल है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है. कैरेक्टर तो सेम रहेगा. कैरेक्टर यानी जो रोल नायक या नायिका तो सेम रहेगा. नायक मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, मान लीजिए इस स्टोरी में अभी कहीं ना कहीं डेजरी को मेन कैरेक्टर माना जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, लेट अस अज्यूम यू आर वॉचिंग ए मूवी, और उसमें शुरू में लगता है कि चलो ठीक है मेन हीरो तो यही है, वही सारा काम कर रहा है, लेकिन आधी मूवी के बाद अचानक गेम पलट जाता है, उसमें कोई और उससे भी बड़ा कुछ रहता है जो एक्चुअल में सारा गेम पूरा प्लान किया रहता है. तो एक्चुअल में वहां पे मेन कैरेक्टर कौन हुआ? फिलहाल जो ज्यादा जिसको समय दिया जाए मेन कैरेक्टर्स को हम लोग उन्हीं को एनालाइज करके मानते हैं, बट कहीं ना कहीं जो रोल है वो चेंज हो सकता है जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है. अब शुरू में ही मान लीजिए अरमान पहले बहुत अच्छा था, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ी अरमान के बारे में हम क्या सकते हैं, अरमान के बारे में जो हम लोगों का विचार है या जो उनके रीडर्स का जो विचार है वो चेंज हो गया. या डेजरी के बारे में भी सबका अपना अपना फीडबैक हो सकता है. So these are the 6 points. Actually, these are the 4 points. Mainly, these are the 4 points. यही 4 points हैं. यही 4 point हैं that can help us to analyze any character in a story. जो किसी भी character को किसी story में analyze कर सकते हैं जिसके help से. तो ये चीजें समझ में आया कि कोई भी character कैसा है, किस तरह का रोल निभा रहा है, मेजर रोल निभा रहा है या माइनर रोल निभा रहा है, या फिर मेन कैरेक्टर है या नायक है या नहीं है, मतलब मेन कैरेक्टर यानी प्रोटोगोनिस्ट है या नहीं है, मेन कैरेक्टर जिसे बोलते हैं. तो ये सारी चीजें एनालाइज करके हम लोग बता सकते हैं ना. यस सर. अब चलिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है, आपने यहाँ पे एनालाइज किया. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एन एग्जाम्पल दैट की हाउ टू राइट अबाउट एनी कैरेक्टर. यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स को पहले हम देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से किसी अदर कैरेक्टर के बारे में हम आप लिखने का प्रयास करेंगे. ओके तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक दैट कि हाउ टू राइट अबाउट एनी कैरेक्टर. तो सबसे पहले आपके इस राइटिंग जंक्शन में डेजरी के बारे में ही लिखा है, पढ़ते हैं डेजरी को. लेट अस लुक एट डेजरीज अगेन. एक बार चलो डेजरी को दोबारा हम लोग देखते हैं, यानी डेजरी के बारे में फिर से पढ़ते हैं. शी इज ब्यूटीफुल यंग वुमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल यंग वुमन. वो एक बहुत ही सुंदर महिला है. हु हैज जस्ट बिकम अ मदर, जो कि बहुत ही जल्दी ही माँ बनी हुई है. जो डेजरी है बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमन है जो कि अभी जल्दी ही माँ बनी हुई है. देयर आर सर्टेन क्वालिटीज दैट डिस्क्राइब्स हर वेल. अब
देयर आर सर्टेन क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि वो अच्छी है, जो कि उसके अच्छे होने को डिस्क्राइब करती है, यानी एक तरीके से बताती है। लेट अस लुक एट व्हाट दोस क्वालिटीज आर एंड व्हाट एविडेंस वी कैन फाइंड इन द स्टोरी टू प्रूव देम। अब हमें क्या करना है, लेट अस लुक एट व्हाट दोस क्वालिटीज आर। चलो हम देखते हैं आखिर वो क्वालिटीज हैं क्या जो डेजरी को अच्छा बनाते हैं, जो डेजरी के बारे में बेहतर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। एंड व्हाट एविडेंस, एविडेंस मींस क्या होता है, एविडेंस मींस प्रमाण, सबूत, प्रमाण। तो कहते हैं ना कि कोई एविडेंस है आपके पास, ऐसे बोल रहे हो तो। एंड व्हाट एविडेंस वी कैन फाइंड इन द स्टोरी, आखिर स्टोरी में हमें ऐसे कौन से एविडेंस मिले, ऐसा क्या कहीं पे लिखा हो तो वही एविडेंस है हमारे लिए, पढ़ने समय यही तो होगा एविडेंस। तो स्टोरी में ऐसा कौन सा एविडेंस है जो ये प्रूव करता हो कि शी इज, जो उसके बारे में उसके अच्छे होने को डिस्क्राइब करने के लिए एविडेंस का काम कर सके, जो ये डिस्क्राइब करता हो कि हाँ वो अच्छी है। तो स्टोरी में से ही पढ़ते हैं। स्टोरी में आपके ये पहला पॉइंट भी लिखा है, शी इज जेंटल, अफेक्शनेट एंड सिंसियर। वह एक सौम्य, अफेक्शनेट एक तरीके से कह सकते हैं, उस जेंटल में आप कह सकते हैं कि सभ्य, सौम्य, कुछ भी कह सकते हैं। अफेक्शनेट में एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रभावी, सिंसियर में होता है ईमानदार। वह एक कोमल, स्नेह और एक ईमानदार जो डेजरी है वो कैसी है, वो जेंटल है, यानी कोमल है, सौम्य है, कुछ भी। जेंटल की मीनिंग आप लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। वह एक कोमल है, स्नेह है और प्लस ईमानदार है। एज इज मेंशन्ड इन द स्टोरी, जैसा कि स्टोरी में मेंशन किया गया है, जो डेजरी है वो एक तरीके से सौम्य भी है, ईमानदार भी है और कहीं ना कहीं अफेक्शनेट भी करने वाली है। शी लव्स हर फैमिली डियरली एज सीन हर डिवोशन। इसको इतना दूर न पढ़ के ऐसे करें, शी लव्स हर फैमिली डियरली, वो अपने फैमिली को बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही ज्यादा मानती है। एज इज सीन, जैसा कि देखा गया है, इन हर डिवोशन टुवर्ड्स हर हस्बैंड, जैसा कि जो उसका डिवोशन है, उसका जो लगाव है उसके प्रति, उसके हस्बैंड के प्रति। जो डेजरी है वो बहुत ही अपनी फैमिली को बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही मानती है। जैसा कि ये देखा गया है, जैसे मतलब ये कैसे कह सकते हैं, जैसा उसका जो लगाव है स्टोरी में उसके हस्बैंड के प्रति देखा गया है, और उसका जो अफेक्शन है टुवर्ड्स हर बेबी, एज इट्स सीन इन हर डिवोशन टुवर्ड्स हर हस्बैंड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स हर बेबी। जैसा कि उसका जो उसके अपने बेबी के प्रति उसका स्नेह है या अपने हस्बैंड के प्रति उसका जो लगाव है, उससे ये देखा गया है कि वो अपने परिवार से बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही मानती है। शी इज ऑल्सो अ लविंग डॉटर, वह एक बहुत ही प्यारी बच्ची भी है, बहुत ही प्यारी डॉटर भी है। तो ये सारी चीजें स्टोरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये डेजरी के बारे में एक तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, शी इज काइंड टुवर्ड्स हर सबऑर्डिनेट। शी इज, अब यहाँ पे तो जो एक तरीके से उसका जो अपीयरेंस की बातें करें या फिर उसके प्रति जो बातें थी वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस किया जा चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट पॉइंट में, वो आखिर वो कैसी है, उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे पहले पॉइंट में हम लोगों ने लिखा। दूसरा, वो आखिर यहाँ पे उसका व्यक्तित्व के बारे में बात किया गया, यहाँ पे उसके व्यवहार के बारे में बात किया, या उसके लगाव के बारे में, उसके फैमिली बैकग्राउंड। आप चाहे तो 2-3 पॉइंट बना सकते हैं, आपके ऊपर है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, शी इज काइंड टुवर्ड्स हर सबऑर्डिनेट। जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे, जो उनके यहाँ पे काम करने वाले थे, उनके प्रति वो काफी दयालु थी, काफी काइंड थी। एज शी बिकम्स मेजरली डिस्टर्ब्ड व्हेन अरमान मिसट्रीट देम। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी, बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। व्हेन अरमान मिसट्रीट देम, जब अरमान जो है उससे मिसट्रीट करता था। मिसट्रीट करना मतलब, ट्रीट मतलब एक तरीके से किसी से व्यवहार करना, मिसट्रीट मतलब दुर्व्यवहार करना। ओके, यस सर। she is very kind towards her subordinate। वो अपने सबऑर्डिनेट के प्रति काफी ज्यादा दयालु थी। जैसा कि ये देखा गया है, वो बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाती थी, मेजरली डिस्टर्ब हो जाती थी जब अरमान मिसट्रीट, जो उनके सबऑर्डिनेट थे, उनके साथ मिसट्रीट करता था। However, हालांकि she is not bold enough to stop him from mistreating them। वो इतना ज्यादा
बोल्ड इनफ नहीं थी, इतना ज्यादा साहसी नहीं थी कि वो अरमान को रोक पाती, उसको मिसट्रीट करने से रोक पाती, अरमान को दुर्व्यवहार से रोक पाती। वो इतना ज्यादा बोल्ड इनफ नहीं थी, इतना ज्यादा साहसी नहीं थी। समझ में आया? Yes, sir. Yes. फोर्थ पॉइंट इज शी इज वेरी डिग्निफाइड लेडी। वो बहुत ही एक तरीके से प्रतिष्ठित महिला थी। डिग्निफाइड मीन्स एक तरीके से बहुत ही प्रतिष्ठा वाली, बहुत ही मतलब प्रतिष्ठित। When अरमान, अभी आखिर हम कैसे कर सकते हैं? When अरमान accuses her of not being white, जब अरमान ने ये अक्यूज किया, आरोप लगाया उस पे, जब आरोप लगाया ऑफ नॉट बीइंग व्हाइट, उसके व्हाइट ना होने का जब अरमान ने आरोप लगाया, तो क्या किया? हर सेल्फ स्टीम, ये सेल्फ स्टीम मीन्स होता है, सेल्फ स्टीम मीन्स होता है आत्मसम्मान, जो उसका आत्मसम्मान इज, जो सेल्फ स्टीम था वो हर्ट हुआ, यानी उसका जो आत्मसम्मान को उसके ठेस पहुंची। जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो क्या किया उसने? इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग और प्लीडिंग, आर्गुइंग मतलब एक तरीके से आर्गू करना, बहस करना, प्लीडिंग मतलब एक तरीके से याचना करना। तो इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग और प्लीडिंग, तो वो बहस करना या याचना करने के बजाय, उसके साथ बहस या याचना करने के बजाय, शी वॉक्स अवे विथ हर हेड हेल्ड हाई, वो उससे दूर चली गई अपना सर ऊंचा करते हुए। तो इससे हम कह सकते हैं कि शी इज अ वेरी डिग्निफाइड लेडी, वो बहुत ही प्रतिष्ठित महिला थी, क्योंकि जब अरमान ने उसके ऊपर व्हाइट ना होने का आरोप लगाया तो उसने अरमान के साथ बहस करने के बजाय, याचना करने के बजाय, वो अपना सर ऊंचा करके वहां से आगे बढ़ गई, उसको मतलब वहां छोड़ के चली गई। तो दिस इज ऑल अबाउट डेजरीज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, वट एवर द स्टोरी वी हैव रेड। अब हमें क्या करना है? चूज ए कैरेक्टर फ्रॉम एनी ऑफ द स्टोरीज। जैसे कि यहाँ पे डेजरी के बारे में यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर, डेजरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। In the same way, we can choose any of the character from any of the story, whether from your book or any other book. आप किसी भी बुक में से, कहीं भी स्टोरी से, आप किसी भी मूवी से, कुछ भी, आप कोई एक कैरेक्टर को आप पहले पिक करें, चूज करें, और उसके बाद क्या करना है? चूज ए कैरेक्टर फ्रॉम एनी ऑफ द स्टोरी दैट यू हैव रेड। आप कोई भी स्टोरी ऐसी, किसी भी स्टोरी में से जो आपने पढ़ रखा है, उसमें से कोई कैरेक्टर चूज करें, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखें, एनालाइजिंग दिस कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को एनालाइज करते हुए। पिक एनी 3 एडजेक्टिव, अब एनालाइज करेंगे तो उसमें से उसकी 3 विशेषताएं भी आपको बताना है। पिक एनी 3 एडजेक्टिव, उसके 3 एडजेक्टिव्स को पिक करें, और ट्रेड्स, या तो विशेषताएं देखें या तो उसके 3 लक्षण देखें। 3 के बजाय 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, इट इज ऑन यू। पिक एनी 3 एडजेक्टिव और ट्रेड्स, उसके 3 लक्षण या 3 विशेषताएं को देखें, दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड सपोर्ट इट विथ हर एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। आपको 3 ऐसे विशेषताएं या 3 ऐसे लक्षण, कोई लक्षण मतलब उसके व्यवहार का लक्षण या उसके बातों का लक्षण, आपको बातों से जो भी लक्षण हो वो आपको पिक करना है और उसको डिस्क्राइब करना है, और इस तरीके से, मतलब इस तरह डिस्क्राइब करना है, और इस तरीके से विशेषताएं या फिर लक्षण होने चाहिए जो उसके कैरेक्टर को सपोर्ट करते हो, विद द एविडेंस, सबूत के साथ, कि आखिर उसने ऐसा किया। तो अगर किसी ने गलत किया, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो गलत है, तो वो अगर स्टोरी में लिखा हुआ तो दैट इज द एविडेंस, जो रिटन है वही एविडेंस है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको कोई भी स्टोरी से आपको एक कैरेक्टर चूज करना है और उसके बारे में इस तरीके से आप सभी को लिखना है। उसमें लिखने के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट दिया गया है कि आप उसमें से कोई 3 एडजेक्टिव या 3 ट्रेट्स आप फाइंड आउट करें, और उसी को आधार बना के आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में आप लिखें, और एक तरीके से उसको एक तरीके से एविडेंस के रूप में भी आप पेश करें। तो ये चीजें हैं, एक एग्जाम्पल भी हो गया, एक आपके लिए एक तरीके से असाइनमेंट भी हो गया। यू ऑल कैन डू दिस वन एट योर होम। ओके, Yes, sir. नाउ Yes, इज sir. देयर एनी क्वेरी फ्रॉम दिस सेक्शन? आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा राइटिंग इंस्ट्रक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So whether you all can write about any character or not in the same way, Yes, sir. at least you can, you all can try. And whatever you are Yes, sir. going to write, you can send the pic of your work into the WhatsApp group, not in the WhatsApp group. You can send me directly to my number, okay, so that I can check Yes, sir. immediately. So
I hope that you would be doing your home assignment. Is there any work in book C related to this section? Book C में कोई work है? Yes, sir. Let me check. This is the pronunciation junction, grammar, writing. Okay. Imagine you are about to write a story. Imagine you are about to write a story and you have to decide how your main character is going to be. Think of 3 leading traits that your character will have. Include both physical and personal traits. How will your character behave in difficult situation? Now write a short note, sketch describing the traits you have imagined for your character. डायरेक्टली आप वो जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट और ये असाइनमेंट दोनों को क्लब कर सकते हैं. आपको कोई भी एक स्टोरी, आप दूसरे की स्टोरी नहीं, अपनी स्टोरी एक इमेजिन करिए और एक स्टोरी लिखने का प्रयास करें. उसमें से आपको क्या इमेजिन करना है? यू कैन इमेजिन जो आपका जो मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का, वो उसके 3 लक्षण क्या हो सकते हैं, या उसकी 3 विशेषताएं क्या हो सकती हैं, या उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये क्या होगा, और वो कैसे जाके स्टोरी में रोल प्ले करने वाला है. उसका फिजिकल अपीयरेंस या उसका बिहेवियर या उसका जो एटीट्यूड है या उसके जो स्टेटमेंट्स है, जो भी वो बात कर रहे हैं, या जो उसके द्वारा किए गए कार्य हैं. तो जो आपके मेन कैरेक्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस है या उसका जो बिहेवियर है, जो या उसके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, यानी उसके जो वर्क हैं या उसके जो स्टेटमेंट है, वो किस तरीके से आपकी स्टोरी में रोल प्ले करने जा रहे हैं, आपकी स्टोरीज को आगे बढ़ाएंगे या मतलब चेंज करेंगे. वो सारी चीजें आप एज ए एविडेंस, एज ए ट्रेड्स की तरह यूज करके आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं. और डिफिकल्ट सिचुएशन में वो क्या करता है, कैसे ट्रीट करता है, वो सारी चीजें आप इमेजिन करके यू ऑल कैन राइट योर ओन स्टोरी. ओके, Yes, sir. आप कोई स्टोरी इमेजिन करें, फिर उसका मेन कैरेक्टर के बारे में आप यहाँ पे लिखें. ओके, Yes. so I hope that it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So book A is already completed. All the things we have discussed, all the sections we have completed. Is there Yes, anything sir. No, sir. Only comprehension. from book C? From book C, only the comprehension junction is remaining. So what I'll do, I'll try to make a recorded video having explanation of this poem. Okay, so you all can go through that, so that in the next class we can discuss the exercise section of this poem. और एक्सरसाइज को जब हम जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग देखे रहेंगे, तो एक्सरसाइज को डिस्कस करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. इज देयर Yes, एनी sir. क्वेरी? कोई Yes, क्वेश्चन sir. पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं. No, sir. चलिए ठीक है, फिर गुड बाय एवरीवन. Goodbye, Yes, sir. sir.